Okay. So, welcome to Bodhicitta Vihara, India, Nagpur. Today's talk is on a thing we've done before, which is a text called Parting from the Four Attachments. बोधिचित्ता विहारा नागपुर भारत में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा अभ्यास है, इसके पहले भी हम कर चुके हैं कि चार जो हमारे जुड़ाव होते हैं उससे कैसे अलग होना, उसके बारे में है। So for people who don't speak English, there isn't a lot on YouTube about Mahayana or Tibetan Buddhism. ऐसे लोग जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए YouTube पर या फिर आप इंटरनेट पर देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं हिंदी में। At our monastery, we are non-sectarian. We teach both Theravada or Hinayan and Mahayana. हमारे मोनेस्ट्री में, हमारे विहार में हम थेरवादा, महायान दोनों की शिक्षाएं देते हैं। But today is about Mahayana Buddhism. पर आज की हमारी शिक्षा महायाना बुद्धिज्म के बारे में है। So, parting from the four attachments is a good way. It's from the Sakya tradition of Tibetan Buddhism, and it's a good way to sum up the entire Buddhist teachings. आज की जो शिक्षाएं हैं वो तिब्बतन बुद्धिज्म की सक्या संस्कृति से आई है, जो कि चार प्रकार के जुड़ावों से दूर होने के बारे में है, और ये एक अच्छी शिक्षा है। Okay. So the first teaching is, if you are attached to the happiness of this life, or is it future lives? Oh my goodness. If you're attached to the happiness of this life, you don't understand the nature of samsara, basically, abbreviated. अगर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर कहे तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस जीवन की, इस जन्म की खुशियों से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप संसार के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हो। So what kind of teachings would fit under this first line? तो ये जो पहली लाइन, ये जो पहली पंक्ति है, इसमें कौन से प्रकार की शिक्षाएं आएंगी? The four. Yeah, anything that turns the mind from samsara, that loosens our obsession with just seeking pleasure now in this life. ऐसी कोई भी शिक्षा जो हमारे मन को संसार से दूर करती है, हमारे मन को आरामदायक वस्तुओं से, आरामदायक चीज़ों से अलग करती है, वो सभी उसमें आएगी। So a normal person would say, what's wrong? Excuse me, what's wrong with pleasure? Don't we all want to be happy? एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि आरामदायक जीवन में कौन सी बुराई है, हम सभी तो खुशी होना चाहते हैं। And that's true. There's nothing wrong with seeking to be happy, but what kind of happiness? और ये सही भी है, खुशी को खोजने में कोई बुराई नहीं है, पर आप कौन से प्रकार की खुशी खोज रहे हो? Because if we look at our mind, like we go on holiday, we enjoy, but then we run out of money, so we have to come home. We fall in love, and even if it's a happy relationship that lasts many years, like a nice marriage, finally we become more like friends, and the excitement is gone. It becomes very normal, even if they're still a nice person. Everything changes. No happiness lasts permanently. हर चीज़ जो है वो बदलते रहती है। जैसे कि आप कभी छुट्टियां मनाने बाहर जाओ, आप छुट्टियों का आनंद लो, फिर आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर आपको वापस आना पड़ता है। उसके बाद अगर आप किसी के प्यार में गिरे और आपका जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, वो कई सालों तक रहे, आपकी शादी हुई और आपका रिश्ता कई सालों तक रहे, बहुत अच्छे से रहे, आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, पर फिर एक ऐसा समय आता है जब आपके लिए उस रिश्ते की सभी चीज़ें भी सामान्य हो जाती है, आप एक दूसरे के लिए दोस्त की तरह बन जाते हैं। तो यही है कि हर चीज़ बदलते रहती है। And why does our happiness change? Even on a more subtle level, why do we suffer?
Why is temporary happiness not enough? और क्यों हमारी खुशी बदलते रहती है? अगर आप एक निचले या छोटे स्तर पर भी देखा जाए तो फिर भी हमारी खुशियाँ जो है वो ज़्यादा समय तक क्यों नहीं रहती है? हमारी खुशियाँ हमारे लिए काफ़ी क्यों नहीं होती? So the problem is, that we get dissatisfied because we, in life, with what is arising, we constantly have to fight to get what we want. And even what we want changes. Like we get what we want, but then it's not enough. We need more and more and more. We always have to update ourselves. और परेशानी की बात यह है कि हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हमें जीवन में कुछ मिलता है पर हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए होता है और हम अपने जीवन भर और की चाह करते रहते हैं। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। Okay, so unfortunately the noise of India is just going on outside and we just have to deal with that. So yeah, if you look at your mind in meditation, if you do a meditation retreat, you'll probably feel like, I don't feel happy. This meditation isn't making me happy. It's showing like my mind is crazy. I just have this voice talking in my head non-stop. बदकिस्मती से अगर आप अपने मन को मेडिटेशन में डालो या आप कोई शिविर करो तो आपका मन शुरुआत में ऐसा कहने लगेगा कि अरे मुझे तो ये ध्यान नहीं करना है, मुझे तो इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है। एक अलग प्रकार की कोई आवाज़ लगातार शुरू है मेरे मन में। But when the talking stops, there is space, there is luminous awareness. पर जब वो आवाज़ रुक जाती है, जब वो बातें रुक जाती है हमारे मन की, तो फिर हमारे मन में जगह बनने लगती है, एक अद्भुत जागृति का निर्माण होता है। So Westerners like to say that Buddhism isn't a religion. जो विदेशी लोग होते हैं, पाश्चात्य जो देशों के लोग होते हैं, वो ये कहना पसंद करते हैं कि बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है। And they are not wrong. और वो गलत भी नहीं है in some sense, अगर कहीं कुछ तरीकों से देखा जाए तो, because Buddhism is about exploring the way things are, the truth, beyond dogma, beyond beliefs, but a direct experience of the truth for yourself. क्योंकि बुद्धिज़्म सच्चाई को खोजने के बारे में है। जो भी विश्वास है, जो भी श्रद्धाएं हैं, जो भी कही गई बातें हैं, उन कही गई बातों को खुद अनुभव कर कर खोजने के बारे में बुद्धिज़्म है। But Buddhism is also a religion. पर बुद्धिज़्म एक धर्म भी है। Because it's an ethical system of beliefs. क्योंकि सभी प्रकार के विश्वासों का एक शीलवान तरीका है, पद्धत है। But it's not a religion that has a God. पर ये एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई देव नहीं है। There are some temporary beings born as gods temporarily that are not enlightened, that are still in the wheel of birth and death, but we don't regard them as a creator god, as a supreme deity or a refuge. ऐसे कुछ जीव है जो देव स्थान पर या देवों की जगह पर पैदा होते हैं, पर वो वहाँ पे कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, वो हमेशा वहाँ नहीं रहते और वो सबसे बड़े देव या सबसे बड़े देयती उन्हें हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो भी इस संसार के चक्र में फंसे हुए रहते हैं। So yeah, I mean, the way we exist is interdependent. We are affected by things. We are in relationship to things. We have many non-self elements. जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, जिस तरीके से हमारा अस्तित्व आता है, वो एक दूसरे पर निर्भरता के कारण आता है। हम चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं। हमारे अंदर ही न दिखने वाले, हमारे अंदर उपस्थित होने वाले धातुओं से बने होते हैं। What can't we live without parents, without water, without the earth that grows our food, the farmers, the air, the rain, the sun, culture, gender, like these are all things that influence who we become, where we're born. और ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके बिना हम नहीं जी सकते? हमारे माता पिता, पानी, हवा, धरती जहाँ पे हमारा भोजन उगता है, किसान जो खाना बनाता है
और ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे अस्तित्व को निर्माण करती है। हम जैसे होते हैं वो इन सभी चीज़ों के कारण होते हैं। Like if you were born in Australia, you would be totally different. जैसे कि अगर आपका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता तो आप पूरी तरीके से भिन्न व्यक्ति होते। If I was born in India, I would be totally different. अगर मेरा जन्म भारत में होता तो मैं पूरी तरीके से अलग होती। If I was a man, I would be quite different. अगर मैं कोई पुरुष होती तो मैं बहुत अलग होती। If I was rich, if I was poor, so many things affect us. अगर मैं अमीर होती, अगर मैं गरीब होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती है। Even our existence depends on a very thin piece of muscle in our heart going like this, and if it stops, there is no more us. यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व हमारे दिल में एक छोटे से मसल के टुकड़े पर निर्भर करता है जो हमारे दिल में धक धक करते रहता है। अगर वो रुक गया तो फिर हम नहीं रहेंगे। Or one vein in our brain. या फिर हमारे मस्तिष्क की एक नस पर निर्भर करता है। We have remembrance of the past, a continuity of thought, feeling, input, sensory input, and based on this information we create a sense of self, like a person in a control booth. You know, it's a bit like when actors are on stage and there is someone in the lighting box holding up the special effects, the sound, the lights, and based on this information we think this is a real thing, this is a real life thing, not just actors on a stage. और हमें हमारे अंदर भूतकाल की याद होती है, भूतकाल के अनुभव होते हैं, भूतकाल की क्रियाएं होती है जिसके हिसाब से, जिसके ऊपर ही हमारा वर्तमान निर्भर करता है। आपने स्टेज पर देखा होगा जब कोई ड्रामा चलता है, कोई कार्यक्रम या कोई क्रिया चलती है तो एक्टर्स स्टेज पर नहीं होते और आपको अलग अलग प्रकार की रोशनी या लाइट्स के इफ़ेक्ट दिखाए जाते हैं या इफ़ेक्ट डाले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे वाह ये तो असली है। So just think of a movie like Devdas with Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai. How much we like a movie like that and how it looks so luxurious and real. Like you think, wow, those people are really rich and the scenes are so beautiful, right? जैसे कि देवदास नाम की एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय होती है और हम ऐसा सोचते हैं कि अरे कितनी अमीर, कितनी आरामदायक फिल्म है ये, इसमें इन लोगों का जीवन कितना आरामदायक है। And we get really involved in the story of that. We cry when, you know, the hero drinks himself to death and I don't know what else happens. और ऐसी ही फिल्मों की जो कहानियाँ होती है इसमें हम पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरीके से मदहोश हो जाते हैं। जैसे जब हम वो सीन देखते हैं जब जो उस फिल्म का जो हीरो है वो अपने आप को मरने तक शराब में डुबो देता है। But in real life, those actors aren't in love with each other. पर असल जीवन में देखा जाए तो वो दोनों जो एक्टर्स है, अभिनेता अभिनेत्री है, वो एक दूसरे के प्यार में नहीं है। They didn't drink themselves to death. वो मरने तक शराब भी नहीं पीते। They are doing it for money. वो बस पैसे के लिए वैसा एक्ट कर रहे हैं। The scenes, the luxurious mansion is just made from plastic and special effects and some metal. It's not really luxurious. It's just the appearance of luxury. वो जो हम फिल्म में देखते हैं जो आरामदायक महल, वो आरामदायक चीज़ें, वो बस प्लास्टिक से, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट से और कुछ धातुओं से बनी होती है, वो असल में नहीं होती है लग्जरियस। Like when you see after a wedding in our India, we love our Indian weddings with all the nice luxurious things also, but then you look behind the stage and you see it's just made of POP and it collapses and the tent is packed up and the music system goes home and there is just some garbage lying on the lawn. हमारे भारत में हमें शादियाँ जो है वो बहुत पसंद है, पर आप जब शादियों के बाद की अवस्था देखोगे, शादियों जब होते रहती है तो स्टेज के पीछे बहुत आरामदायक चीज़ें, सुंदर चीज़ें रखी रहती है, म्यूज़िक रहता है और दूसरी चीज़ें रहती है, पर फिर जब शादी हो जाती है तो आप देखोगे कि स्टेज के जो पीछे का हिस्सा है, जो आरामदायक चीज़ें दिख रही है हमें, वो पीओपी से बनी होती है, वो टूटने लगती है। उसके बाद जो लाइटिंग्स है वो बंद हो जाती है और म्यूज़िक सिस्टम जो है वो घर चला जाता है और फिर आप देखोगे कि एक किनारे पर लॉन के
बहुत सारा कचरा जमा पड़ा होता है and the mandap is gone. और मंडप चला जाता है, निकल देते हैं मंडप। The people are back in their normal clothes, लोग अपने सामान्य कपड़ों में वापस आ जाते हैं, cleaning their houses, sending their kids to school, yelling at their husband or wife. अपने पति या पत्नी पर चिल्लाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने घर को साफ सफाई करने में लग जाते हैं। The magic is gone. और पूरा जादू जो है वो गायब हो जाता है। The appearance of magic. या जो जादू का जो अस्तित्व है वो भी चला जाता So है। relatively, on a relative level, the magic happened. पर एक जुड़ते तरीके से देखेंगे आप, जुड़ते हुए लेवल पर, तो आपको दिखेगा कि जो जादू है वो हो रहा है। But it's not permanent. It's not unchangeable. पर वो हमेशा का जादू नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो बदलेगा नहीं। So the performance of self is also like a Bollywood movie. The story is there, the people are emotionally involved, but it's not as solid as it appears. तो आत्मा का जो अस्तित्व होता है वो भी इस फिल्म की तरह ही होती है। जो हम जैसा व्यवहार करते हैं वो असली दिखता है, जो हमारे साथ होता है वो असली दिखता है, पर वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसे वो हो रहा है। So take away water, take away air, you can't live. अगर आपके जीवन से पानी या हवा को निकाल दिया जाए तो आप नहीं जी पाओगे। So the Buddha said the self is only an ever-changing mind-body continuum dependent on causes and conditions. It has no permanent essence. And if there was a permanent essence, it would be a cause of suffering that would never change. और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा वो एक ऐसी शरीर और मन की निरंतरता है जो हमेशा बदलते रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगी तो वो दुख का कारण बनेगी, और वो एक ऐसा दुख का कारण बनेगी जो कभी नहीं बदलता है। But instead there is a constant vibration, a moving of energy, input, a dance of phenomena that is just constantly changing, and there is spacious awareness, and we don't need to grasp at that. We just can be open and present without creating a sense of self based on the sense and body continuum. There is only a relative self, but even that is empty. Too much, Mother. Can't remember it? No, it's okay. too much. So there is only a temporary self dependent that arises due to causes and conditions. सिर्फ एक टेम्पररी या कुछ समय की आत्मा होती है जो कारण और परिस्थितियों की वजह से निर्माण होती है। And there is a spacious, luminous awareness that is holding space for the moving input and energy. और एक बहुत ही जगह स्पेशियस ज़्यादा जगह वाली अद्भुत जागृति होती है जो इन सभी ऊर्जाओं को पकड़ कर रखती है। Luminous awareness. Luminous, do you know? अद्भुत is the word. Okay. And we can just be open to what's arising, interact with others. Just like the mirror reflects, the mirror is not tainted by an ugly appearance or a beautiful appearance. It's not happening in the mirror. The mirror is only reflecting. और आप देख सकते हो चीज़ों की सभी जो अस्तित्व में आना है उसके पैदा होने को, जैसे कि मिरर जो आईना होता है वो परछाइयों को दिखाता है। परछाइयों का असर आईने पर नहीं होता, चाहे परछाई कुरूप हो या सुंदर हो, उससे आईना कुरूप या सुंदर नहीं होता है। But that level of equanimity is hard, and most of the time we react, we become reactive, we feel feelings, we create concrete reactions and self-grasping and karma. पर ऐसी समदर्शिता, ऐसे स्तर की समदर्शिता को लाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई बार हम प्रति उत्तर करते हैं, प्रति व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ होता है उसके ऊपर हमारा तुरंत बर्ताव होता है, और तुरंत बर्ताव के कारण फिर हम कर्म करते हैं। So the practice of the first level of the parting from the four attachments is to detach and realize this self-grasping, this making sensory input concrete is suffering. तो जो पहला स्तर है उसका जो अभ्यास होता है कि हमें हर प्रकार के जो अटैचमेंट है या जुड़ाव है उससे हमें दूर करना है, हमें इस ठोस जुड़ाव से दूर करना है, क्योंकि ये हमारे दुख का कारण बन रहा है।
making things concrete. और चीज़ों को ठोस बना रहा है. Okay, so the second line is if you are attached just to a good rebirth, you don't have renunciation. और जो दूसरी लाइन है या दूसरी पंक्ति है वो ये है कि यदि आप एक अच्छे रीबर्थ या अच्छे पुनर्जन्म से जुड़े हुए हो, तब आप, अगर आप उससे जुड़े हुए हो तो आप त्याग नहीं कर सकते. So some people don't believe in rebirth. कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं. But even if you don't believe in rebirth, you can see that just investing in material things, in temporary happiness, doesn't give true peace. That true peace must come from within and must come from cleaning out the negative emotions and making space in the mind for a healthy, peaceful, joyful, spacious mind. अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं भी करते हो, पर फिर भी आप देख सकते हो कि कुछ समय की मिलने वाली खुशियों में बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा, बहुत ज़्यादा खुद को झोंक देने पर भी आपके मन में वो शांति या वो संतुष्टि नहीं आती है, वो आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती है. Just like if you have a dirty house and you put beautiful furniture inside, you can't really enjoy it because everything else is filthy. उसी तरह जैसे कि अगर आपका जो घर है, गंदा घर है अगर आपके पास, और आप उसमें फिर अच्छी सुंदर चीज़ें डाल रहे हो, तो फिर भी आप उसका मज़ा नहीं ले सकते या स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि आपका घर गंदा है. Whatever you do under the control of self-grasping will lead to suffering. सेल्फ ग्रास्पिंग मतलब खुद को कड़ाई से पकड़ के रखने की भावना के कारण आप जो भी करोगे वो आपको दुख की ओर ले जाएगा. Because it's not recognizing the basic freedom and joy of our Buddha nature. क्योंकि वो हमारे बुद्ध स्वभाव के मूल आज़ादी को, मूल आनंद को जान नहीं पा रहा है. So just seeking a good rebirth, it's like a holiday on a credit card. तो बस एक अच्छे पुनर्जन्म की चाह करना वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से हॉलिडे मनाने जा रहे हो, छुट्टियां मनाने जा रहे हो. Finally the holiday ends and we have to repay the debt. क्योंकि फिर एक दिन छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और क्रेडिट कार्ड का कर्जा आपको फिर से वापस करना पड़ेगा. Abhi, paying everything with credit card is a little bit you can fool yourself like I'm not spending a lot of money. Tap tap tap. क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करना हमें उतना कठिन नहीं लगता है. हमें ऐसा लगता है कि मैं तो ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं कर रहा हूँ, तो हम टैप करते रहते हैं. But at the end of the month you see, wow, my bill, I spent so much money. और फिर महीने के अंत में आपको पता चलता है, अरे मैंने तो बहुत सारा पैसा खर्च किया. So we need to have some mindfulness, awareness of our body, speech and mind. और इसीलिए हमें हमारे शरीर, भाषा और मन की ओर जागरूक रहने की ज़रूरत है. You know, you could do the same amount of practice, but if your motivation is for the liberation of all beings, that practice will be much more profound if your motivation is bodhicitta than if your motivation was just, I'm just doing this so that I can feel happy, or because she made me because I work for her. आप समान ही अनुपात का अभ्यास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, पर यदि आप अपने अंदर बोधिचित्ता की भावना रखकर, दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों को मुक्त करने की भावना रखकर आप उस उद्देश्य से अपने प्रयत्न करें, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, ना कि क्योंकि IISA के लिए मैं काम करती हूँ या करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, या फिर मुझे बस अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए इसीलिए मुझे करना है. Okay, and then the third line is if you're seeking only your own liberation, you don't have compassion, you don't have bodhicitta. और फिर तीसरी पंक्ति ये है कि यदि आप सिर्फ खुद की ज्ञान प्राप्ति के लिए, खुद की मुक्ति के लिए ही काम कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में करुणा नहीं है.
So you can see in the first two lines, all of Theravada is contained. The Four Noble Truths, the Eightfold Path. आप पहली दो पंक्तियों में देख सकते हो कि पूर्ण थेरवादा जो है वो आ गया है। चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, The Four Foundations of Mindfulness. जागृति के चार आधार स्तंभ, Body, sensations, mind and objects of mind. शरीर, अनुभूतियाँ, मन और मन के धातु। And then now we're going on to the Mahayana, the so-called great vehicle. और अभी हम महायान की ओर मुड़ रहे हैं, जिसे महान यान कहते हैं। So what is bodhicitta? Bodhicitta is the understanding that we're all connected. और बोधिचित्ता क्या होता है? बोधिचित्ता वह समझदारी होती है कि जिसमें हम समझते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। That you and I affect each other. जिसका अर्थ होता है कि आपका और हमारा एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। So say I run a company and I don't pay my employees well. And I threaten them all the time, and they are kind of unhappy, miserable. उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चलाती हूँ और उसमें जो मेरे कर्मचारी हैं उनको मैं बराबर पगार नहीं देती हूँ, हमेशा उनको धमकियाँ देते रहती हूँ, और वो जो है वहाँ पे उस कंपनी में सभी जो कर्मचारी है वो डरा हुआ महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। So let's say that I'm come from a poor background, but I also disrespect my workers. तो चलिए ऐसा कहते हैं कि मैं गरीब बैकग्राउंड से, गरीब परिस्थिति से आई हूँ, पर मैं अपने वर्कर्स या कर्मचारियों का भी अनादर ही करती हूँ। And then I build a big mansion in the slum. और फिर मैंने झोपड़पट्टी में एक बहुत बड़ा महल बना लिया है। And I do things like have a gold sink, and my wife is wearing a lot of gold, and I have a Mercedes-Benz right in the middle of the slum, and all around me children are starving and men are drinking because their life is so depressing and beating their wives. Would I feel secure in my mansion? और फिर कहते हैं कि फिर जो पैसा मैं कमा रही हूँ उससे मैं बहुत बड़ा महल तो बना लिया है मैंने एक मर्सिडीज़ खरीदी है जो झोपड़पट्टी के बीच में ही है। मेरी पत्नी बहुत सारा सोना पहने हुए है, मेरे घर में चीज़ें सोने की बनी हुई है, और मेरे चारों ओर जो है सभी जो लोग हैं वो दुखी है। आदमी शराब पीते हैं, अपने पत्नियों को मारते हैं क्योंकि उनके पास भरपूर नहीं है। तो क्या ऐसी जगह मैं सुरक्षित महसूस करूँगी? No, people like that need to employ security guards. ऐसे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। People like that have like crorepati, have their kids kidnapped. बहुत सारे करोड़पति लोग जो होते हैं उनके बच्चों को किडनैप किया जाता है। They're constantly worried, for family members. उन्हें लगातार हमेशा अपने परिवार वालों की चिंता होते रहती है। Why? Because they have an extreme amount of wealth and everybody around them has nothing, and their wealth comes from exploiting others. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अति संपत्ति होती है, बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, जबकि उनके आसपास के चारों ओर के लोगों के पास नहीं होती संपत्ति, और उनके पास जो भी संपत्ति होती है वो दूसरों का शोषण करने से उन्हें प्राप्त हुई है। I'm not saying everyone who's rich is exploiting others. I'm just saying that when there is extreme wealth and extreme poverty, the people with all the resources don't feel safe. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी जो लोग अमीर हैं वो लोगों का दूसरों का शोषण करते हैं, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब कहीं पे अति संपत्ति होती है और कहीं पे अति गरीबी होती है तो ऐसी जगह पर लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता। So every being has a mother. तो हर जीव की माँ होती है। And most of those mothers would die for their children. और उनमें से कई या बहुत सारी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती है। Even small animals. यहाँ तक कि छोटे जानवरों की माताएं भी। I have seen like little dogs attacking much bigger dogs or tigers or something to try and protect their young. मैंने देखा है छोटे जो कुत्ते होते हैं वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े कुत्तों पर भी हमला कर देते हैं। कुछ जानवर शेर पर भी हमला कर देते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। And parents of humans, like if they are not traumatized or mentally ill, they take care of their children.
और मनुष्यों में भी सभी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर वो अगर उन पर कोई आघात ना हुआ हो या फिर मानसिक तौर पर बीमार ना हो, फिर भी वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। So much effort, you know, the pain of giving birth is incredible for 48 hours sometimes. बहुत सारे प्रयत्न, यहाँ तक कि जो जन्म देते वक्त समय का जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो भी बहुत अधिक होता है। कभी कभी वो दर्द 48 घंटों तक चलता है। And just think, you know, everything you enjoy, the fact that you can see a sunset or fall in love or have your own children is because a mother has given birth to you. और सोचिए कि आप जिन भी चीज़ों का आनंद उठा सकते हो, आप उगते सूर्य को देख सकते हो, प्यार में गिर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें का आनंद ले सकते हो, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है। But if you don't make use of this birth, you don't seek liberation, it's just another round on the endless round of samsara. You're just spinning wheels but going nowhere. Like a person in a gym on a cycle. पर अगर आप इस जन्म का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आप इस जन्म में आज़ादी को नहीं खोजोगे, तो आप इस संसार के चक्र में बस और एक चक्र में घूमने वाले हो। जैसा वह व्यक्ति होता है जो जिम में जाता है और ट्रेडमिल पे चलते रहता है, तो आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप बस वहीं पे चल रहे हो, वहीं पे घूम रहे हो। But it's easy to forget the kindness of our parents. You know, parents don't sleep for years when they have young children. They just work until their bones ache to support us. They suffer so much and they give up their freedom, their dreams to care for us. पर यह आसान हो जाता है हमारे माता पिता की जो दया है उसको भूल जाना। बहुत कई सालों तक तो माता पिता सोते भी नहीं है बराबर। जब उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक उनकी हड्डियां नहीं दुखती, वो तब तक हमारे सहारा देते हैं जब तक उनसे हो सके। And even if you didn't have good parents, there is someone who kept you alive. Without the care of someone like a parent, a social worker or a bai, you would not be alive to enjoy the things you're enjoying now. और यदि अगर कभी आपके माता पिता उतने अच्छे नहीं भी हो, पर फिर भी कोई ना कोई होता है जिसने आपको जिंदा रखा है, जिसने आपको पाला है, बिना किसी बाई के, बिना किसी सोशल वर्कर की केयर के, किसी सोशल वर्कर या बाई की परवाह के आप अभी जीवित नहीं होते और आप वो चीज़ें नहीं करते होते जो आप कर रहे हो। So everything we have comes from others. तो हमारे पास जो भी है वो दूसरों से आता है। So we affect each other and therefore we should care for each other. We should work for the liberation of all beings. तो हमारा एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए और सभी जीवों के मुक्ति के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। You know, when I was younger and I was just focusing on my own practice, probably my life was easier and I was kind of happy, enjoying my own practice. जब मैं कम उम्र की थी और जब मैं अपना खुद का अभ्यास कर रही थी, हो सकता है उस समय मेरा जीवन थोड़ा सा और सरल हो क्योंकि मैं अपने खुद के अभ्यास में ही व्यस्त थी और खुद का ही अभ्यास करती थी। I didn't have a whole slum of people to worry about. मेरे पास कोई झोपड़पट्टी नहीं थी लोगों से भरी हुई जिसकी मैं चिंता करूं। But there was something missing from my life. पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ तो भी कमी है। My life was a bit dry. थोड़ा सा सूखा जीवन था मेरा। And then when I found the Ambedkarite people and they just loved me and they were very open-hearted and enthusiastic. और फिर जब मैंने अम्बेडकराइट लोगों से मैं मिली, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो खुले मन वाले लोग थे। Especially my foster daughter Raki, she was the first one who really got into my heart. और मुख्य तौर पे देखा जाए तो मेरी मानी हुई बच्ची राखी, वो एक पहली व्यक्ति थी जो मेरे दिल में उतर गई थी। And then, you know, that feeling of love, like I just realized, wow, you know, I've really been missing out. My life was a bit empty. And when you really love people, your life is meaningful. When you live to serve other people, your life is meaningful. और फिर वो जो प्यार की भावना है, मुझे ऐसा लगता था अरे मेरे जीवन में कुछ तो भी कमी थी, मेरा जीवन थोड़ा सा खाली था। पर जब उस प्यार की भावना हमारे अंदर आती है, वो प्यार हमारे अंदर आता है, तो हमें लगता है कि अरे अब मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। And other people become a cause for our practice. और फिर दूसरे हमारे ही अभ्यास का कारण बनने लगते हैं। They annoy us. वो हमें नाराज करते हैं। They challenge us and they show us who we really are. वो हमें चुनौतियाँ देते हैं और हमें दिखाते हैं हमारा असली रूप। They show us how whether we're really spiritually developed or not.
वो हमें दिखाते हैं कि क्या हम सच में धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर विकसित है या नहीं. But we shouldn't just let them control us like a puppet. पर हमने भी उनको हम पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देना चाहिए जैसे कठपुतली की तरह. We need to create an environment of practice if that's what we really care about. हमें अभ्यास का वातावरण बनाने की ज़रूरत है अगर हम सच में अभ्यास करना चाहते हो तो. You don't help drowning people by drowning with them. डूबते हुए लोगों को हम खुद डूबकर मदद नहीं कर सकते हैं. You help drowning people by pulling them out of the water. डूबते हुए लोगों को पानी से बाहर खींचकर हम उसकी मदद कर सकते हैं. And first you must learn to swim. और उसके लिए पहले आपको तैरना आना चाहिए. So some of us have a small amount of capacity to help others. Some of us have a big amount of capacity. I realized as a white person from a foreign country, I had more capacity to raise money and help others. So I did. तो हम में से कुछ में कम क्षमता होती है दूसरों की मदद करने के लिए, कुछ में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है दूसरों की मदद करने के लिए. मुझे ये समझ में आ गया कि एक विदेशी और गोरे व्यक्ति के रूप में मुझ में ज़्यादा क्षमता है कि मैं पैसा इकट्ठा करके लोगों की मदद कर सकूं, तो मैं करती हूं. But I have to say, you know, when I grew up middle class and I wasn't aware of the rest of the world, our world was quite small and protected. और मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में बड़ी हुई और मुझे जब बाकी दुनिया की चिंता नहीं के बारे में नहीं पता था, कि चिंता नहीं थी, तो मेरी दुनिया बहुत छोटी थी उस समय. It wasn't that happy, it wasn't that meaningful. उतनी ज़्यादा सुखी भी नहीं थी, उतनी ज़्यादा अर्थपूर्ण भी नहीं थी. My mother said, why do you want to go to India? It's like not, there's a lot of poverty and suffering. Why do you want to do that? मेरी माँ हमेशा कहती है कि तुम भारत में क्यों जाती हो, तुम्हें क्या क्यों जाना है भारत में, वहाँ पे बहुत सारी गरीबी है, दुख है, वहाँ पे क्यों जाती हो वहाँ. But only when you come up against your edge and you open your house of life to the doors of the world, to the winds of the world, you understand who you are. पर आपको तभी समझ में आता है आप कौन हो जब आप अपने ज़िंदगी के किनारे पर आ जाते हो और फिर आप अपने दरवाजे खोलते हो बाहर की दुनिया की हवा के लिए, बाहर की दुनिया के लिए. तभी आपको समझ में आ जाता है कि आप कौन हो. You have to give your children the freedom to discover who they are. आपको अपने बच्चों को वो आज़ादी देनी पड़ेगी जिससे कि वो खुद खोज सके कि वो असल में क्या है, कौन है. That is the right of every human being. और यही हर मनुष्य का अधिकार है. And if you open yourself to the world, you may discover that you are capable of more than you thought. And you may discover your own Buddha nature, your own profound peace. और जब आप खुद को दुनिया के लिए खोल दोगे तो हो सकता है कि आपको पता चले कि आप जितना खुद को समझते थे उससे ज़्यादा आप में क्षमता है. आप खुद के अंदर के बुद्ध स्वभाव को जान सको, आप खुद के अंदर की शांति को जान सको. There is a part of you that is beyond gender, beyond race, beyond culture. आपके अंदर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि लिंग से भी परे है, जाति से भी परे है, संस्कृति से भी परे है, रंग से परे है. But it is not a self. पर वो आत्मा नहीं है. That just allowing things to be open and constantly changing and being present with that awareness is enough. चीज़ों को बदलने देना, उनके बदलने स्वभाव को मान लेना, अपना लेना और देखते रहना, यही काफ़ी है. But we don't know that mind. We haven't recognized that pure luminous awareness because we are always caught in self and feelings and grasping. क्योंकि हम हमेशा की खुद में फंसे हुए होते हैं, खुद की भावनाओं में फंसे होते हैं, खुद के अच्छे बुरे को पकड़ के रखने में फंसे हुए होते हैं. इसीलिए हम उस जागृति को समझ नहीं पाए हैं, अभी तक उसे जान नहीं पाए हैं, उस भावना को जान नहीं पाए हैं. So bodhicitta, we developed the wish to liberate all beings. We say, I will not only work for my own liberation, whatever I do, I will work for the liberation of all beings. May all beings who are just like my mother, I've had so many mothers in past lives. I will work for my own and others' liberation. And our motivation, the way we practice, our heart opens.
तो बोधिचित्ता में हम अपने अंदर ऐसी कामना का विकास करते हैं जिसमें हम अपने साथ दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं, दूसरों को भी मुक्त करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकास करूँ जिससे कि मैं दूसरों को भी दुख से मुक्त करूँ, अपने अंदर ऐसी करुणा का विकास करूँ कि मैं दूसरों को भी इस संसारिक चक्र से आज़ाद कर सकूँ। And then the final line comes, if grasping follows in your meditation, you don't have the right view. और फिर अंतिम पंक्ति आती है जिसमें ऐसा कहा गया है कि यदि आपके ध्यान में ग्रास्पिंग या चीज़ों को पकड़, भावनाओं को या अपनी अच्छे बुरे को पकड़ के रखना आता है, इसका मतलब आपकी सोच सही नहीं है। And that was what I was talking about. If you're taking the sensory input as this is me, this is mine, and you're getting, you're wanting the pleasant thing and having aversion to the unpleasant thing, you don't have real wisdom because you haven't gone beyond hope and fear. और यही इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि यदि आप अपनी इंद्रियों की या अपने खुद को उन अच्छे बुरे लगने वाली भावनाओं को ही खुद स्वयं को मान लो और यही सोचो कि ये अच्छा बुरा ही मैं हूँ, और फिर आप उसके आधार पर अच्छे को पास लाओ और बुरे को दूर करो, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँचे हो। So as someone following the Bodhisattva path, you follow the 6 perfections, morality, generosity, patience, joyous effort, concentration, wisdom. तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बोधिसत्व मार्ग पर चल रहा है, तो आपको 6 पारमिताओं का अभ्यास करना चाहिए, जो कि आता है दान, शील, धैर्य, प्रयत्न, जागृति और प्रज्ञा। But yeah, when you're trying to understand everything is connected, this self is constantly changing, and how easy it is for this body to end, and how moment to moment, which moment of mind is it? Examine these things. और जब आप समझने लगते हो कि हर चीज़ हमेशा बदलते रहती है, हर चीज़ का स्वभाव निरंतर बदलाव है, और आप जब जानने लगते हो कि कौन सा क्षण है जो हमारा है, उसको आपको परखना है, उसको जानना है। Life is very fragile. जीवन बहुत नाजुक है। And we're constantly aging. और हमारी उम्र लगातार बढ़ रही है। Our beautiful friend Roshni, who passed away last week, died from diabetes, and she was 39. हमारी सुंदर मित्र रोशनी, जिसकी मृत्यु हुई पिछले हफ्ते, उसकी मृत्यु डायबिटीज से हुई और उसकी उम्र जो थी वो 39 साल की थी। And we saw her body. It was so young and beautiful. It didn't even just look like she was asleep. हमने उसके शरीर को देखा, वो अभी भी जवान लग रही थी, सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बस सोई है। But if you watch a body burn, you realize how quickly it returns to the elements. The water comes out, the fat burns. और अगर आप किसी जलते शरीर को देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितने जल्दी जो हमारा शरीर है वो पंचधातुओं में मिल जाता है, पानी बाहर निकल आता है, मांस जलने लगता है। Gain some peace, gain some good karma. Recognize the undying nature of mind before you die. आपकी मृत्यु से पहले कुछ शांति को ग्रहण कर लीजिए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए और अपने मन के न मरने वाले स्वभाव को जानिए। And learn to sit with good and to go beyond and stay open to the present moment. और अच्छाई के साथ बैठना सीखिए और अपनी भावनाओं के परे जाना सीखिए, वर्तमान समय में रहना सीखिए। To go beyond happiness, unhappiness, praise and blame. खुशी, निराशा, तारीफें और इल्जाम, इसके परे जाना सीखिए। Gain and loss. पाना और खोना, इसके परे जाना सीखिए। Fame and the opposite of fame. शोहरत और बदनामी के परे जाना सीखिए। I'm not saying we should behave like a crazy yogi and that nothing matters. We still live in the relative world. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी पागल योगी की तरह आप व्यवहार कीजिए और ऐसा सोचिए कि कोई भी चीज़ कोई काम की नहीं है। हमें अभी भी इस जुड़ती हुई दुनिया में रहना है। But just remember, everything changes. पर ये भी याद रखिए कि हर चीज़ बदलते रहती है। Whatever money you make, whatever you build up will fall apart.
जो भी आप बनाते हो, जो भी आप पैसा कमाते हो, वो कभी ना कभी ख़त्म होगा. In 100 years, none of us will be here. Even our children won't be here. Our houses will be dust. 100 सालों में ना हम में से कोई यहाँ रहने वाला है, ना कि हमारे बच्चों में से कोई यहाँ रहने वाला है. हमारे जो घर है वो धूल में मिलने वाले हैं. We are just like the path of a bird's flight across the sky. हम बस उस रास्ते की तरह है जिस पर पक्षी आसमान में उड़ता है. So seek liberation. तो आज़ादी, मुक्ति को खोजिए. Just make some space in your mind. Just try to start with 15 minutes a day of just trying to rest in the spacious mind and being aware of the breath coming in and out. अपने मन में कुछ जगह बनाइए. रोज़ कम से कम 15 मिनट से शुरू कीजिए. अपने मन में ऐसी जगह बनाइए जिसमें आप अपनी सांस की ओर ध्यान लगा सके, जो आपकी नाक से बाहर अंदर जाती है. And then you will stop being so unhappy that you can't get what you want, trying to get validation, prestige outside yourself, which is also a cause of suffering. और फिर आप निराश होना कम कर लोगे, बंद कर लोगे. अपनी खुशी या आपको जो लगने वाली खुशी है कि मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ये चाहिए, उसमें आप नहीं बंधे रहोगे. And you will develop deeper qualities and you'll start to think of benefiting others. और फिर आपके अंदर गहरे गुणों का निर्माण होने लगेगा और आप फिर दूसरों को लाभ पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू करोगे. And whatever responsibilities you have, whether as a worker or as a person with a family, will become more easy. और जो भी जिम्मेदारियां आपके पास है, आप पर है, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे अपने परिवार के सदस्यों के रूप में हो, वो आपके लिए सरल बनने लगेंगे. May all beings be happy. सभी जीव खुश रहें. सपपपसकरणं कुशला सौपसम्पदा सचित पर्योतपनं एतं बुधान शासनं.